Good evening, everyone. Welcome to another book review session by the Bibliophile family. Today, we will be discussing the book Choices Inside the Making of India's Foreign Policy by Shiv Shankar Menon. So, the author is a former diplomat and he served the country in the 1990s and the late 1980s, and he worked closely with Dr. Vajpayee. Excuse me. So he worked closely with Dr. Vajpayee, then Dr. P.V. Narasimha Rao, and so he's telling about those years in which the author was a diplomat, and the book is named Choices because the diplomacy or even I would say policy making of the country is often defined through various choices and how the policymaker or the person in charge is taking that policy decision, and that shapes the future of the country. So for example, I would not I'm not being biased, but there are certain issues in the certain things in the history. For example, there were two choices after the 2008 attack. So we have in this book also 2008 Taj attacks are mentioned, 2611 as we say that. So for example, during the 2008 attacks, what happened and what were the actions taken by the government of India and in 2008, and during the surgical strikes we did surgical strikes because of the attacks. So there are two two pathways, two choices that a government or a policymaker takes, and these are very two different examples of what happened after the aftermath. So I think the Uri attack, when it happened and what the government did, that is a different pathway, and another pathway is what government did after 2008. So these two are the options, but these two are the choices basically, and what the government took as choices. And I think most of us present here right now, you all might be knowing about the history because we all were present at that time. So during the 1980s and 90s, so these things are actually known to us, and this is unlike other books, this book is also for the youth of the country to know. जैसे मैंने पिछले बुक भी जो रिव्यू करी थी, so this was also that Sanjeev Sanyal sir's book also was aimed for the youth of the country to know the history of the country, and this is aimed at youth of the country to know the diplomacy, how India actually acts in the foreign section, and geopolitically how India shows its presence to the world. So in this, there are five chapters, and there are total of five incidences. The first one is the Indo-Pak War, 1962-1965, and the aftermath of it, and how the geopolitics was framed in that scenario. Then it's the civil nuclear deal that was in 2008. It was with the United States of America, and what were the costs that India bore at that time, and what did India gain from that. So that will be discussed. Then it's the Mumbai attack, the cross-border terrorism, and what happened and what happened after the attacks. What um, did India do after that? Then it's Sri Lanka. If you we all remember Prabhakaran and the Litte Liberation Tigers of Tamil Eelam. So that is there. And then finally, why India pledges the new nuclear first use policy. So I will be focusing on the first four stories, and I don't have the presentation because I thought it's let's talk. And I got to know that I am doing the book review yesterday only, so that's why. And I was reading this book, so I thought why not our members should gain a revision of the things. So let's. I hope I'm audible and the topic sounds interesting to all of you. And let's begin. So anyone would like to share something what they know about India-Pak relationship during the Kargil or the Parvez Musharraf era, or what were
your opinion, because I think we all were present, and like I was not there. We were not born. Maybe Aditya was also not born, but most of us were there. So, what were your opinion? You might be very young, Vinuji, Amiji. So, what did you hear in the news at that time? All right. So, starting with the India-Pak relationship, it was never on a very harmonious pathway, India-Pak relation. And the first war was in 1948, and we didn't even know much about that. And then the Mujahideens and the organized terror was starting to build in Pakistan, and with the help of locals as well, they started to have war, because we both the countries were born on almost similar dates, but they chose different paths. One chose the path of terror, and another chose a different path. So here in the diplomacy point of view, हमेशा इंडिया के पास पाकिस्तान एज अ थ्रेट हमेशा रहा, and Pakistan chose not to have any amicable relationships. So there are instances जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी. There are instances in which the both the diplomacy, both the diplomats of the country wanted to have a peaceful time. For example, in 2050, just a second. तो अगर आपको याद होगा तो एक सद्भावना एक्सप्रेस चली थी. If you all know, it was by the Vajpayee government. Yes, and that was because there were attempts diplomatically to to pacify the borders, especially because trade cannot happen if the borders are not secured and borders are not pacified, because a major chunk of our energy, our resources, our money was going to the borders and to army. तो बहुत सारी कोशिश हुई कि डिप्लोमेटिकली हम इस चीज को सॉल्व कर पाए, बट ऐसा बहुत कम हो पाया. एंड इफ यू ऑल नो, परवेज मुशर्रफ जब जो थे, ये जो डिप्लोमेट है ना, ये 1989 में आए हैं. तो ही हैज स्टार्टेड विद दिस, यहाँ से इस बुक से ये स्टार्ट हुआ है कि कारगिल वॉर में क्या हुआ. तो जब कारगिल का वॉर था, वी हैड एन अपर हैंड, इवन दो वी सफर्ड अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज, और एक बहुत ही बड़ा युद्ध था. बट डिप्लोमेटिकली ये चीज सेटअप हो गई थी कि इंडिया एक अपर एज पे है पाकिस्तान से. बिकॉज उसके पहले क्या था कि यूएस बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान का हमेशा से, बिकॉज ही वांटेड एन यूएस वांटेड एन एडवांटेज ओवर अफगानिस्तान, क्योंकि रशिया वहां पे आ, आ रहा था. तो रशिया फर्स्ट इन्वेडेड अफगानिस्तान, एंड इन टर्न क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पे यही चल रहा था अंटिल 1989 एंड 1990, द सोवियत डिसइंटीग्रेशन के समय तक, यूएस वांटेड टू एंटर इनटू अफगानिस्तान थ्रू पाकिस्तान. तो यूएस ने कभी इंडिया का पाकिस्तान इंडिया के विषय में कभी साथ नहीं दिया. एंड ये जो भी इंडिया ने करा है, इट्स ऑलमोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन कैपेबिलिटीज. बहुत ज्यादा यूएस का सपोर्ट नहीं आया. तो 1990 1991 वाज अ वेरी क्रूशियल टाइम, क्योंकि 1990 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, तालिबान आ गया. तालिबान एक बड़ा पावर इमर्ज हुआ 1990s में, और उसका फिर 10 साल के बाद हमें उसके इम्पैक्ट देखने को मिले. 2000, 2001, 2000 में जब अफगानिस्तान पे कब्जा हो गया तालिबान का, 2001 में जब 26 9/11 अटैक्स हुए, फिर 2001 में हम पे पार्लियामेंट अटैक हुआ, पार्लियामेंट में, और अक्षरधाम टेम्पल में, और ऐसे बहुत सारे अटैक्स हुए. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका हम 1989 बोल सकते हैं, और हम कश्मीर जीनोसाइड को नहीं भूल सकते, जो कि तालिबान के थ्रू ही हुआ था 1990s में. एंड देन द कारगिल वॉर. तो बहुत बहुत सारी चीजें चल रही थी, एंड जियो पॉलिटिक्स इज अ कल्मिनेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स टुगेदर हैपनिंग.
तो मैं एज अ स्टोरी आपको जस्ट ऐसा सुना रही हूँ। आई होप आपको बहुत सारी चीजें पता होगी एंड यू माइट बी रिलेटिंग टू दैट एज वेल कि क्या चल रहा था। तो इस ये डिप्लोमैट ने डिप्लोमैटिकली ही सारे इंस्टेंसेस की बात करी एंड ही इज ऑफ द व्यू कि इंडिया पाकिस्तान बाय टॉक्स बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते थे रादर देन वायलेंस। और जो वाजपेयी जी की इसने इन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ करी है कि वाजपेयी जी एक ओवरऑल सौहार्द ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते थे, वर्ल्ड पीस की बात करते थे वो हमेशा। ही वॉज नॉट जस्ट कंसर्न एंड अबाउट इंडिया या फिर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ना देखते हुए जब उन्होंने पोखरण भी करवाया तो ही वॉज ऑफ द व्यू कि ये ओवरऑल पीस के लिए ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि न्यूक्लियर डेटरेंस होगा रैदर देन ऑफ द व्यू कि हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। तो ये उनकी एक सोच बोल सकते हैं या एक बोलते हैं ना बड़प्पन बोल सकते हैं एज अ स्टेट्समैन कि वाजपेयी जी की ये थॉट प्रोसेस रही है स्पेशली ड्यूरिंग द 1998 पोखरण 2। तो अब पाकिस्तान का 2008 वाला जो अटैक था उसके बारे में भी ऑथर बोल रहे हैं कि रीजन क्या है क्योंकि किसी को कुछ कभी समझ नहीं आया कि क्योंकि 2004 में वाजपेयी जी ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले थे एक एक पाथवे जो करतारपुर कॉरिडोर अगर आपको पता हो तो वो भी खोलने की कोशिश करी जा रही थी। जो करतारपुर साहिब है जो गुरुद्वारा है जहाँ पे इट्स अ श्राइन जहाँ गुरु नानक जी आई थिंक उनका देहांत हुआ था। ही स्पेंड द लास्ट डेज इन करतारपुर। तो करतारपुर इज वेरी बिग पिलग्रिमेज टू ऑल द पंजाबीज ऑल द सिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो सिक्स इंडिया के सिक्स नहीं जा पाते थे एंड द स्टार्टिंग ऑफ करतारपुर कॉरिडोर द सद्भावना एक्सप्रेस और जो बस चालू करी थी और फिर बस पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इवेंचुअली वो सद्भावना एक्सप्रेस पे भी ब्लास्ट ही हुआ। तो वाजपेयी जी ने बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स करे थे डिप्लोमेटिकली भी और वैसे भी। एंड जब नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी 1991 में एंड व्हेन these things were happening तो वाजपेयी जी वर वेरी मच कीन और उन्होंने एज एन ऑपोजिशन लीडर भी बहुत बहुत मदद करी थी। तो दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट इंडिया पाकिस्तान। इसमें बाकी चीजें जो ऑथर खुद है वो अपने बारे में ज्यादा बात कर रहा है कि मैंने ऐसा किया मैंने इससे बात की मैंने वो करा। तो आई डोंट थिंक कि हम ज्यादा उसमें जाना चाहिए एंड दैट्स वाई फिर मैंने सोचा कि इसको इस बुक रिव्यू को थोड़ा फैक्चुअली enrich कर देते हैं। So I read more on different topics. So this is more of a storytelling session from my point of view as well। मतलब मैंने जो facts निकाले हैं गूगल से उनको भी मैं इंक्लूड करती जा रही हूँ ताकि ये एक किसी का एक वन साइडेड बुक ओपिनियन ना लगे। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज मैंने काफी चीजें समझी हैं कि अगर आप किसी एक आइडियोलॉजी के हैं और अगर आप वो बुक लिख रहे हैं तो आप में वो आइडियोलॉजी आ जाती है। एक अंडरटोन रहता है उस चीज का। सो आई डोंट वांट टीडीएफ मेंबर्स टू हैव दैट आइडियोलॉजिकल थिंग। इट शुड बी एक मिडिल पाथ होना चाहिए हमारी थॉट प्रोसेस का। ऐसा मैं सोचती हूँ। दैट्स सो ये मैं पढ़ना चाहूंगी कि विद द प्राइम मिनिस्टर Atal Bihari Vajpayee, one always got the feeling that he thought of a greater good than immediate party political advantage, and that he had a larger sense of India's destiny and of the historical nature of what we are doing. He was good enough to send me to China as an ambassador. तो वो अपनी कथा बता रहे हैं कि मैंने चाइना गया था मैं और क्योंकि पार्लियामेंट अटैक हुआ था एंड अगर आपको याद होगा अ, मतलब हम लोग नहीं थे 1991 में 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था एक फिर 96 में हुआ एंड दैट वाज अ सीरीज ऑफ ब्लास्ट। एक साथ 15 मिनट के अंदर 11 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 93 में फिर 96 में मुंबई में। ये सब मुंबई में ही हो रहा है एंड स्टिल एट दैट टाइम एज वेल वी डिप्लोमेटिकली हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान हमसे बात करे। हम इसका कुछ कहते हैं ना इसका कुछ और एक्शन नहीं लिया हमने। वी वर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ टॉकिंग टॉकिंग इट आउट एंड इसलिए भी बिकॉज हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चालू किए थे 1991 में। तो हम ऑलरेडी डेट में थे। वी ऑल नो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रहा था। तो दैट्स व्हाई इंडिया डिडंट वांट एनी मोर टेंशन ऑन इट्स एक्सचेकर। पैसे
की कमी थी, तो हम और नहीं चाह रहे थे कि हमारी रिसोर्सेज और ड्रेन आउट हो। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि शायद कुछ हुआ नहीं, मतलब दिस इज दिस इज माय टेक। मे बी माय टेक नहीं, ये लिखा है इन्होंने कि इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स की वजह से भी हमने कुछ करा नहीं ड्यूरिंग द 93 एंड 96। एंड अपोलॉजीज, कारगिल वॉर 1999 में हुआ है। मैं 1990s से कंफ्यूज हो रही थी, कंफ्यूज नहीं, 1990s में अनदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो आई वाज मिस्टेकन विद दैट। तो तालिबान स्टार्टेड इन द 1990s विद द कश्मीर एंड एवरीथिंग, एंड उसका सही एक्चुअल रूप 1999 और 2000 और 2001 में दिखा, जब एक्चुअली जैसे अभी भी तालिबान ही है अफगानिस्तान के कंट्रोल कर रहा है। तो अफगानिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअली तालिबान ही जाता है, जो भी अगर किसी समिट में जाना हो या कहीं जाना हो, और अगर अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करा गया, फॉर एग्जाम्पल जब अफगानिस्तान की पीस डील हो रही थी या और भी कुछ मीटिंग्स है सपोज रशिया के साथ, तो कोई अफगानिस्तानी नहीं, डिप्लोमेट नहीं जाता है, तालिबान ही जाता है। एंड इन सिमिलर फैशन इन द 2000s, अर्ली 2000 एंड लेट 1990s, it was actually represented by the Al Qaeda and Taliban। तो बहुत ज्यादा, एंड अल कायदा एंड तालिबान वर्कड इन वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, एलईटी जो हाफिज सईद का है, अल कायदा है, अबू बल अल बगदादी वाला, ये सभी लोग आपस में क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। एंड इनका जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये हमारे यहाँ के जो लिट्टे वाले तो है वो, जो नक्सलिज्म वाले हैं वो, जो खालिस्तानी फोर्सेस पंजाब में थी, इफ यू ऑल रिमेम्बर, भिंडरा वाले, और उनका जो थोड़ा सा जो रेसिड्यू बचा था वो, all these people were in actually in touch and they were in coordination। जो प्रभाकरन हैं लिट्टे के, जो he was the chief of लिट्टे, उन्होंने कुर्दिश, अगर आप येमेन और कुर्दियों को जानते होंगे, कुर्दिश पीपल जो पैलेस्टीन के पास ही है कुर्दिस्तान जिसको कहा जाता है, तो कुर्द आर ऑल्सो रिबेल्स, और ये भी अटैक करते हैं। आपने अगर हूथी रिबेल्स हैं, एक येमेन वाले, एक कुर्दिश हैं वो है, तो देवर ऑल्सो जो प्रभाकर है और उसकी टीम थी, देवर वर्किंग अलोंग साइड पैलेस्टीनियन से, इन्होंने वॉरफेयर सीखा था वो पैलेस्टाइन जाके। तो ये जितने भी रिबेल्स हैं, दैट आई डिडंट नो, वर्ल्ड के रिबेल्स, दे वर ऑल्सो इन क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। सो दिस वाज द पाकिस्तान एक्चुअली इज अ वेरी बिग टॉपिक, एंड इन्होंने जितना मुझे समझाया बुक में, मैंने उतना थोड़ा सा आपको बता दिया। आई होप द सेशन is fine and you find it interesting. Yeah, Yes, yes, Palak. thank you. And yes, I don't know where is everyone right now, but okay. So now we will be moving on to the 2008 civil nuclear deal that happened between India and the USA. So the condition of the civil nuclear deal, I would like to start with that first, कि इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और में एक्सेप्टेंस मिले, और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का इंडिया पार्ट बने, और इन टर्न यूएस के लिए इंडिया अपने जो सिविल और स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर एरियाज हैं वो ओपन कर दे। ओपन का मतलब है ओपन टू स्क्रूटनी। सो दिस वाज द कंडीशन, एंड इसी पे नेगोशिएशंस हुए, और फाइनली न्यूक्लियर डील 6 सितंबर 2008 में साइन हुई थी मनमोहन सिंह एंड जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा। So this was the crux. Now I will start with the nuclear program of India. So it was helped by US, starting at the Tarapur nuclear power plant, जो कि 1967 में इंडिया को इस्टेब्लिश करवाया था यूएस ने, इस शर्त पे कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा, ये शर्त थी। और बट इंडिया ने 1974 में पोखरण करके इस चीज को, इस ट्रीटी को तोड़ा था। एंड उसके बाद फिर जो तारापुर का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आई थिंक संजय सर माइट बी नोइंग अ लॉट बिकॉज ही वर्क्स इन द एनर्जी इंडस्ट्री, तो उसमें फिर यूएस ने फ्यूल प्रोवाइड करना बंद कर दिया था। एंड दैट स्टार्टेड विथ ये एक बैड
बोल सकते हैं इवेंट था। पोखरण के बाद इंडिया को बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगे थे इंडिया के ऊपर, और इंडिया ने कभी भी एनपीटी साइन नहीं किया, क्योंकि इंडिया को एनपीटी का मतलब है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि हम और किसी देश को न्यूक्लियर 1967 के बाद, अगर कोई 1967 के बाद हम किसी देश को न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने देंगे, पहला, और हम किसी और को न्यूक्लियर सप्लाई नहीं करेंगे। ये एनपीटी का के टेनेट्स है। तो इंडिया ने बोला कि 1967 ही क्यों, तो ये बहुत ही आर्बिट्ररी साल आपने चुना है जानबूझ के। तो हम एनपीटी साइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है बाकियों के लिए। तो एनपीटी बहुत सारी कंट्रीज ने साइन नहीं किया है, जैसे पाकिस्तान ने भी नहीं किया है, इसराइल ने भी नहीं किया है, इंडिया और नॉर्थ कोरिया, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो अभी के लिए जो 5 मेजर कंट्रीज हैं, जो 5 सुपर पावर्स भी बोली जाती हैं, इन्हीं पांचों के पास जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं। तो यूएस, यूके, रशिया, चाइना, एक और कौन बचा, आई थिंक जापान, फ्रांस। हाँ, फ्रांस, ओके, जर्मनी। फ्रांस सर, फ्रांस। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो ये 5 ही हैं, और ये 5 किसी और को कभी भी पार्ट नहीं बनने देना चाहते एनपीटी का। नाउ कम्स द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। तो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एक ट्रेड और पॉलिटिकल, बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, जो कि बेसिकली कंट्रोल करता है कि कौन न्यूक्लियर वेपन्स वेपन्स एंड सिविल और स्ट्रैटेजिक पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर की चीजें रखेगा। एंड इंडिया वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द एनएसजी ग्रुप, एंड फाइनली वी बिकेम द पार्ट। हम एनएसजी का पार्ट हैं, बट हमने एनपीटी साइन नहीं किया है। जिन लोगों ने एनपीटी साइन किया है ना, बस वो ही एनएसजी का पार्ट बन सकते हैं। बट इंडिया एक इकलौती ऐसी कंट्री है अभी तक जो एनएसजी का पार्ट है, बावजूद इसके कि उसने एनपीटी साइन नहीं किया है। तो दैट्स अ वेरी एक बहुत बड़ा सक्सेस है हमारी डिप्लोमेसी में और स्ट्रैटेजिक टॉकिंग में, एंड आई थिंक दिस इज द क्रक्स। तो इसके बाद मतलब ये बोन ऑफ अटेंशन था कि इंडिया अपने स्ट्रैटेजिक लोकेशंस शेयर नहीं करेगा। और आज भी मैंने अभी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है डिफेंस की, उस पे जब मैंने देखा ना, तो जब 123 अग्रीमेंट है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, 123 सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट, तो यूएस की वेबसाइट पे ये लिखा है कि इंडिया विल अग्री टू शो ऑल द न्यूक्लियर फैसिलिटीज, सारी, सिविल भी और स्ट्रैटेजिक भी। और इंडिया में ऐसा लिखा है, इंडिया के सेक्शन में, मतलब इंडिया की वेबसाइट पे लिखा है कि इंडिया विल शो सर्टेन, मतलब कुछ ही साइट्स को दिखाएगी इंडिया। तो ये आज भी मतलब इंडिया को लगता है कि इंडिया कुछ ही दिखाएगी, और यूएस ऐसा बोलता है कि हमने बोला है कि सारी होनी चाहिए, सारी दिखाओ, आप सारी फैसिलिटीज, सारी दिखाओ का मतलब है जो आईएईए है, वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, वो स्क्रूटिनाइज करेगी। और इसी बेसिस पे ईरान का भी के साथ भी इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी। तो दिस इज द सेम आईएईए जो कि गवर्न करता है, आई थिंक संजय सर माइट बी नोइंग द एटॉमिक एनर्जी एंड द एनर्जी सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत बड़ी कंटेंशन है कि हम क्यों, हमारी, और सबसे ज्यादा जो ऑपोजिशन हुआ था इस न्यूक्लियर डील का, वो यही था कि हम हमारी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस नहीं दिखाना चाहेंगे आपको, वी डोंट वांट दैट, वी विल शो यू व्हाट वी वांट। और एक तरफ कुडनकोलम पावर प्लांट भी चल रहा था, जो कि रशिया की मदद से चल रहा था। तो रशिया वाज आल्सो इन फेवर, सरप्राइजिंगली रशिया, और जो लेफ्ट था, लेफ्ट ऑफ द कंट्री, लेफ्ट ने ऑलमोस्ट एवरी टाइम दे हैव अपोज्ड। जब पोखरन हुआ था तब भी लेफ्ट ने एक पीस करके पीस मार्च निकाला था कि आपने क्यों न्यूक्लियर टेस्ट करे हैं। तो बट सरप्राइजिंगली द सीपीआईएम वाज इन सपोर्ट of the civil nuclear deal, and BJP was in oppose, in vehement oppose of the civil nuclear deal, ताकि क्योंकि ये बोला जा रहा था कि आप स्ट्रैटेजिक लोकेशन से बता रहे हो, तो इट्स द क्वेश्चन ऑन द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। अब एक दिस इज द लास्ट पॉइंट सिविल न्यूक्लियर डील का, कि अगर इन द फ्यूचर किसी पावर प्लांट पे डैमेज होता है, जैसे चेरनोबिल में हुआ या फुकुशिमा दाइची में हुआ, इट वाज अ डिजास्टर, मतलब इतना
उसके जो रेपरकशंस रैमिफिकेशंस है ना वो अभी भी दिखते हैं। अगर फुकुशिमा दाइची देखे जाए या चेरनोबिल देखा जाए, आप चेरनोबिल और फुकुशिमा दाइची दाइची के बारे में अगर पढ़ेंगे तो इट इज हार्ट ब्रेकिंग। मतलब वो लोगों को चेरनोबिल में तो लगा था कि वो जो रेडिएशंस के पार्टिकल हैं वो स्नो है, और लोग वो रेडिएशन को पकड़ रहे थे अपने हाथ से वो पार्टिकल्स को, एंड इन फ्यू डेज देयर बॉडी डिसॉल्व, मतलब गल गई थी वो रेडिएशन और उसकी वजह से। तो ऐसा कुछ ना हो, तो उसके जो रेपरकशंस है उसको कौन झेलेगा। और ये आज भी बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया और यूएस के बीच में इन द सिविल न्यूक्लियर डील कि who will take care of this, because we were already facing the repercussions of भोपाल गैस tragedy, जो कि डेविड हेडले और इनकी वजह से बहुत हुआ था। तो इसलिए 1984 की जो चीजें हमारे साथ हुई थी उस समय, उससे बचने के लिए वी वर एडमेंट कि ये जो रेपरकशंस है इसमें आपका भी योगदान होना चाहिए, आप भी इसको अकाउंटेबिलिटी लीजिए। बट यूएस डिनाइड राइट अवे कि नहीं, वी विल नॉट। तो दिस इज स्टिल ऑन गोइंग, इसको बोला जा सकता है कि एक ऑन गोइंग डिस्कशन है ये। आई वुड रियली लाइक, संजय सर, अगर आप कुछ कहना चाहें, बिकॉज यू आर इन द इंडस्ट्री। One thing I would like to, because in 2000 I joined Bhabha Atomic Research Center, and I could face, not face means we were having challenge. Uh, I'm mindful here in sharing one project, because after Pokhran 2 there was sanctions, and I was part of classified project to develop nuclear fuel for submarine. And as you rightly mentioned that all sort of technology related exports were denied to us, to India. We started from scratch, and in fact we were having two references. One is a book written by Harrington in 1957, the US writer on uranium process technologies, and another was Russian writer in 1959. On the basis of literature, we started working on certain things related to nuclear fuel development for submarine, and we could succeed in 2 years. And I am very proud to be part of that project. We started in buckets, and nuclear related work is not easy. And when you are working on uh, if you know the science part of the fission, so fission is then we were all sort of related to this uncontrolled reaction chain reactions and all. So those experiments done by reactor division. But what I am now reminding myself that work what we had done for 2 to 4 years and all to develop that, and India could succeed. And all I think four four scientists, including me, and we were having some helping hands, and all people were kind of eighth pass, 10th pass. Those kind of people were working with us, and those were very strategic in the sense means like, okay, ये करना है वो करना है, no questions, no nothing like okay बहुत ज्यादा, and they were very अभी तो वो लोग रिटायर हो चुके हैं वगैरह जो भी है, but yes, thank you so much for having this discussion. And those were glorious years for me. 7 years I worked there, and I don't have any answer that why I left. But one thing is that I was not having any social life during those days. We were working in a kind of old building, discarded building, shared there. No, means we were not interacting with other people also in various divisions and all. But yes, 3 4 different divisions working together to have this success. Thank you so much for this. In fact, you rightly mentioned that it was not easy, and after 26/11 US lifted the sanctions.
We were having sanctions immediate after Pokhran test, but within I think 1 or 2 years, sanctions were lifted, and then again, and that paved the deal for this civil nuclear deal by US in 2000. Please continue. Sorry, I took longer time here, but yes, this was very emotional to me as well. Thank you. Thank you so much, sir. When I was reading about this, you were there in my mind, and I was thinking कि आप attend करनी चाहिए ये session. Thank you so much, and it's an honor to have you here in TBS. इतने इतने बड़े साइंटिस्ट का हमारे पास एक uh, योगदान है, साथ है, तो it's wonderful for TBS. Thank you. Amazing, sir. And this marvels us what all we have done without the help of the world. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने हमें नहीं दी गई, एंड दैट्स व्हाई इसको एक फिजिटी यूएस को एक फिजिटिंग पार्टनर फ्रेंड बोला जाता है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, ही इज नॉट ट्रस्टेड। अब आप उस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज पे, तो वो टेक्नोलॉजी तो देगा ही नहीं, उल्टा सैंक्शंस लगा देगा। एंड आई थिंक वी हैव वर्कड अंडर अ लॉट ऑफ सैंक्शंस मल्टीपल टाइम्स। और जब अब हम आई थिंक एचईयू बोला जाता है, जो हम न्यूक्लियर फिशन कैपेबिलिटी हुई है इसी साल शायद अचीव हुई है, आई इफ आई नॉट रॉन्ग, तो वो भी हमारे कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स की वजह से ही हुई है। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द you all see me and hear me? Can you all see me? Yes, now it's okay. There were disturbances. Yeah. Thank you so much. And still I am in two screens. Okay. Ramit sir, would you like to share something? No, in between I got call and I couldn't continue, but I could understand. And of course, today's topic is totally different, and this is what unique about TBF, that we cover all kind of subjects. So this is totally unusual and but very interesting to know, and this is really amazing to have such topic in the session. And also, like Sanjay ji is there to inform us about the other aspects also. So it's very interesting, and we are very much you know uh, liking this kind of different subject. So please carry on. Thank you. Thank you, sir. So I think it's half time. 33 minutes हो गए. Can we take a selfie? Are you all ready? अगर अभी possible है तो. Yes, Shekar is here, Energy is here. Let's take a selfie. Shungeri, will you turn on the camera? My sir, good evening. So good to see all of you. Wonderful. Okay, ready everyone. Smile. Wonderful. Thank you so much. All right. So moving on from the civil nuclear deal to the last topic, I would really like to share this. इतना इसके बारे में डिस्कस नहीं होता है, मे बी इफ यू प्लीज रिएक्ट इफ यू ऑल हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस, अबाउट लिट्टे। तो हम उस समय में थे नहीं जब लिट्टे एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्टिव थी, एंड वी लर्न आई लर्न ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम माई पेरेंट्स कि ऐसा हुआ, फिर श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी को ऐसे ह्यूमन बॉम्ब ने अटैक करा, बट आई वॉज unaware of this. I just know it from the competitive point of view. Now I understood a lot of things reading this. So this Shiv Shankar Menon, he was also a part of the diplomatic um, convoy in 2008, 2008 2009, जब LTTE was just
actually about to end. So I'd like to start with the history because I don't think anyone remembers, and I think everyone should know this. So जो श्रीलंका है, श्रीलंका को भी इंडिपेंडेंस 1948 में मिला, एंड ब्रिटिशर्स उसके पहले जैसे इंडिया पाकिस्तान किया ना उन्होंने बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, सिमिलरली दे ट्राइड अ लैंग्वेज वॉर, a language as a medium to have a war between two languages, language speaking people, that is Sinhalese and Tamil. So Sinhalese are Indo-Europeans, and they are the new inhabitants, not very new, but जब ब्रिटिशर्स थे तब, and Tamilians came in Sri Lanka in 300 BC. तो तमिलियंस काफी सालों से श्रीलंका में रह रहे थे, एंड दे वर मेनली प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन द जाफना रीजन. नाउ व्हाट हैपेंड वाज ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने ऐसे बहुत सारे एक्ट्स लाए. फॉर एग्जांपल दे डिड नॉट अलाउ हाई पेइंग जॉब्स टू द तमिलियंस, और उनको एज अ प्लांटेशन वर्कर ही रहने दिया उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने. And when independence came, so similar pattern happened, and जब सिंहली प्रेसिडेंट बने श्रीलंका के, तो they declared the only language, the official language of the country, Sinhalese, not Tamil. उससे क्या हुआ कि तमिल पीपल को, एंड दे डिक्लेयर्ड कि अगर कोई नया सिटीजन आया, नया तमिलियन आया श्रीलंका में, तो ही विल नॉट बी गेटिंग द सिटीजनशिप. तो तमिलियन कोई भी सिटीजन नहीं बन सकता. तो दे वर ट्रीटेड एज अ माइनॉरिटी, एंड उनको उनके साथ बहुत गलत हुआ इनिशियली, बहुत ज्यादा, एंड दैट पेव्ड द वे टू लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलियम. ये रीजन है, एंड दिस हैपेंड इन 1970s, एंड फाइनली जो इन 1976 में इसको एक बहुत बोल सकते हैं एक अच्छा लीडर मिला, तो वेल्लुपल्ली प्रभाकरन. तो ये वो लीडर का नाम है जो प्रभाकरन के नाम से फेमस हुए, और उन्होंने बहुत अटैक्स कराए. तो वन ऑफ द अटैक्स वाज, पहले तो इन्होंने एक बहुत बड़ा अटैक मैं बताना चाहूंगी, इन्होंने एयरपोर्ट पे अटैक करा, और ऐसी जगह अटैक करा कि 90% ऑफ द फ्लाइट्स श्रीलंका की बंद हो गई. मतलब इतना बड़ा अटैक था वो. एंड देन दे वर हैविंग कॉन्टिन्यूसली जो ह्यूमन अटैक होता है ना, ह्यूमन बॉम्ब वाला, वो तो बहुत ज्यादा किया. नाउ केम द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, IPKF, जो कि बेसिकली तमिलनाडु में भी क्या चल रहा था, AIDMK DMK का आ चुकी थी, और कांग्रेस चाह रही थी कि कांग्रेस रहे तमिलनाडु में. और उसका क्या क्या कर सकते हैं हम कांग्रेस को तमिलनाडु में लाने के लिए, कि जो तमिलियंस हैं आउटसाइड, मतलब कि श्रीलंका में, उनको सपोर्ट किया जाए. तो राजीव गांधी ने IPKF भेजी तमिलनाडु में टू सपोर्ट लिट्टे. ऑन द कॉन्ट्ररी ये हुआ कि उन्होंने लिट्टे को ही मारना शुरू कर दिया IPKF ने, और बहुत समय तक IPKF रही, 2000 मतलब 2002 तक रही, और 2002 नहीं, सॉरी, 1991 तक रही IPKF, और 1200 से 1300 इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे उस समय जब राजीव गांधी ने भेजी थी IPKF. तो दैट वाज अ बिग ब्लंडर ऑन द लीडरशिप पार्ट. तो यही बात है, ये चॉइसेस हैं एक्चुअली, आप क्या चुनते हैं, और डिप्लोमेसी फिर क्या करती है, वही भारत की, उसी ने भारत की क्या इतिहास लिखा है, और फ्यूचर लिखेगा भी आगे. एंड देन इन 1991 ओनली श्री परंबदूर में इनको मार डाला गया. और जब लिट्टे रहती थी ना, तो अगर वो पकड़ाए भी जाते थे, तो दे यूज्ड टू हैव अ साइनाइड पाउडर विद देम, और वो खा लेते थे वो, जैसे वो पकड़ाई में आते थे, एंड दे यूज्ड टू कमिट सुसाइड. तो वो उनका जो रैकेट है वो पकड़ाई में नहीं आता था. इवेंचुअली जब महिंदा राजपक्सा आए 2007 में, प्रेसिडेंट बने, वो बुद्धिस्ट हैं और सिंहली हैं, और ये तमिल और ये हिंदू है. तो रिलीजन वाइज और लैंग्वेज वाइज दोनों तरफ से वो अलग अलग थे. एंड देन ही बुचर्ड LTT. मतलब उन्होंने इतना, उनके ऊपर एक्चुअली वॉर क्राइम्स भी हैं. और एक मीटिंग होती है हेड्स ऑफ स्टेट की, अगर आप जानते हो, हर साल होती है. एक होती है हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग, और एक होती है हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग. तो हेड ऑफ गवर्नमेंट का मतलब वही प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ स्टेट्स मतलब की प्रेसिडेंट.
तो जब हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हो रही थी, तो इंडिया ने वीटो किया था श्रीलंका के अगेंस्ट कि आप मत आओ क्योंकि आपने क्या करा है, आपने वॉर क्राइम्स करे। एंड दैट वाज मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, 2009 की बात है ये। तो एचओजी की मीटिंग में श्रीलंका को डिनाई कर दिया था एंट्री, एंड इंडिया आल्सो वोटेड इन फेवर ऑफ डिनायल ऑफ एंट्री। एंड महिंदा राजपक्सा पे बहुत सारे वॉर क्राइम्स की एलिगेशंस हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, लिट्टे ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया इकोनॉमिकली भी और इंफ्रास्ट्रक्चरली भी श्रीलंका को। इन अ बिल्डिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अगर हम भी ऐसा सोचें कि हमारा पूरा एयरपोर्ट ही उड़ा दिया किसी ने और उतनी सारी फ्लाइट्स थी, सब सब खत्म हो गई, तो वीड ऑल्सो फील दैट that should not be there. मतलब we also favor in development. That's my point of view. इन्होंने डिप्लोमेटिकली ये बताया है कि इंडिया ने भी सेवर कर लिए थे टाइज श्रीलंका से कुछ समय के लिए. And then eventually, S. Jaishankar, if we all know, he was obviously a diplomat at that time, very senior diplomat. He was involved in the talks with Sri Lanka, and we have a okay, amicable relationship with Sri Lanka. तो in 2008 and 2009 LTT was crushed thoroughly, और जो प्रभाकरन है उसकी डेथ डिक्लेयर करी थी पार्लियामेंट में श्रीलंका के मई 2009 में. So that's it. This was Tamil history, the Litte history, and I think this will be of a short idea for all of us कि क्या क्या हुआ जियोपॉलिटिकली इन हिज एरा. इन्होंने जो जो बताया. तो शिव शंकर मेनन, आई थॉट ये वीपी मेनन के रिलेटिव है, बट नहीं है, ही समवन एल्स. So yes, that's it from my side. I think I hope you all enjoyed the session. We can discuss. मतलब आप लोगों को बहुत नॉलेज होगा इस बारे में, so we can talk about it. नॉलेज Yeah. होना और उसको राइट वे में एक्सप्लेन करना और कम्युनिकेट करना, आई थिंक इससे बेहतर हो नहीं सकता था कि आपने जिस हिसाब से बताया उसको. We know policies and all, but there is no better way to communicate or to explain policies than storytelling. And I think you did full justice to this session. Thank you so much for taking this review. We don't discuss such kind of books, but I think often as what Rumit sir was telling, that we should include such books also, not like only, or most of the time, or most of book reviews happen, I think, on self-help books or fiction and non-fiction. And so far, such kind of books either we read based on our own choice, and the title is choices here. So I think we should be mindful of our choices also, because we are part of the country. So what has been happened in past, and you rightly chosen the last book also, revolutionaries, and this choices now. I think more and more such kind of books we should include in book reviews. Thank you so much. Thank you so much, sir. Yes, Veenu ji. Yes. Thank you so much, Palak. जैसे संजय जी ने बताया और रुमित जी ने भी, yes, we need such book reviews also. Yeah, it's interesting, and the way you have presented it, I mean, you have spoken like not biased or not this thing. तो ये बहुत ज़रूरी है, with the right this thing, my right what should I say, attitude, right this thing, not biased. So yeah, Thank अच्छा, you, Veenu ji. बहुत ही बढ़िया. And Tiger's Paws I have read about Gurudev Ravi Shankar ji's. He tried to bring end the conflict. LTT से बात करने की बहुत कोशिश की गुरुदेव ने, तो but he didn't come. So the leader didn't come, but he tried to reach out to them, to the people there. So yeah, that is there. And एक movie, actually this is apart from this this thing, but what I watched in मैं वापस आऊंगा.
recent movie about the partition. Yes, that also I think yeah, Indians were not दंगे फसाद जो किया वो करवाया गया था किसी दूसरे लोगों से, बिकॉज द पीपल देयर वेर हैड अ बॉन्डिंग, तो वो नहीं कर सकते थे. तो आई थिंक दैट वाज वेल मैसेज वाज गिवन दैट कोई बलूचिस्तान से किसी और स्टेट से लाया गया था, तो दे हैड प्लान दैट, तो दंगे फसाद उन्होंने करवाया था, बिकॉज द कम्युनिटी देयर वेर ऑल द कम्युनिटीज वेर दे हैड दैट बिलोंगिंगनेस, दैट बॉन्डिंग, तो उनको तोड़ने के लिए ये करवाया गया था. सो ब्रिटिशर्स हैव डन दिस. तो and after our independence, after 2 days this partition was, I mean, done. I mean, they moved from this thing. And उन्हें पहले बताया गया था कि whoever wants to leave this country can leave, Jinnah and Nehru ji ne. But what happened we know. So yeah, that was a big tragedy, and this country also couldn't protect those people. And yeah, so they have divided. British have had already done that with Bengal, and then yeah, India was divided. Bengal में कभी Pakistan and this language, this thing in Sri Lanka. Thank you. सो ब्रिटिशर्स जहाँ भी गए उन्होंने डिवाइड ही किया, मतलब डियोगो गार्शिया, चागोस आइलैंड, ये वाला, मतलब अभी वर्ल्ड के कितने भी डिस्प्यूट हम देख लें वो ब्रिटिश बॉर्न ही है सारे. साउथ सुडान, नॉर्थ सुडान, कोई भी देख लो, एरिट्रिया, इथियोपिया, एवरीवन इज फाइटिंग बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स. थैंक यू वीनू जी. यस. Yeah, Palakji, actually, I had uploaded status 2 days back. One queen from south, and very means almost very negligible people will be knowing about that story. And when her husband was killed by Britishers, she fought against them, and she again regained her empire and everything single-handedly. And she also made the army of women. So these are such very less known stories, but very inspiring, and we should learn from our past mistakes also, because when it's a matter of our relationship with the neighbors. So this is very important subject, and also now as Vinuji said, one movie was there, Pokhran, by John Abraham. So in that movie also it was shown that that trial was conducted without knowledge of US. So because if they come to know, they will not allow. So that movie was very interesting. You must see if you have not seen. I like that movie. It is available on OTT platform. And it is good that now such movies are coming up like Dhurandhar and other. Which means it is not about any party or this. This is about our country, and one should be patriotic to our own country, irrespective of parties and other these things. So that's why this is very important. So thank you for considering such topic in today's session. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर. यस, आई हैव वॉच्ड द मूवी एंड उसमें कितने इंटरेस्टिंगली वो यूएस से छुपाते हैं, सैटेलाइट जाती है तो उतने ही टाइम पे करते हैं. इट्स वंडरफुल. सो आई थिंक यही है कि हमारे साइंटिस्ट ने डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम्स दे वर एबल टू अचीव सो मेनी थिंग्स. और अभी भी यही हो रहा है. जो क्रायोजेनिक इंजन था वो आई थिंक मैं उनका नाम भूल गई, उन पे मूवी भी आई है, नंबी नारायण जी. He was being arrested and all because he was the key scientist of the cryogenic engine. तो वो हम 30 साल पीछे रह गए, but still we were able to achieve that target. So I'm grateful कि हमारे पास इतने अच्छे engineers हैं, scientists हैं,
वर्ल्ड में, इंडिया में, कि बिना किसी मदद के हम कुछ बहुत कुछ कर पाते हैं। वंडरफुल। यस सर। Regarding current policy, why we are inclined towards Taliban? I think this is maybe because Pakistan and Afghanistan relation is not good. Otherwise, Taliban, as you rightly pointed out, that we were not having good terms with Taliban in past. But in the last 1 year, we have noted that we have now little leniency towards Taliban, and I think it is more diplomatic because Taliban or Afghanistan Pakistan relationship is not good. Not I'm not sure. Means you may be knowing more on this side that Taliban principles or ideologies. I think they have not changed, and it is not very soft towards India. They are also kind of okay discussing with us because of their own relationship with Pakistan. Otherwise, तो कुछ अच्छा तो दिखता नहीं उसमें. But ठीक है, diplomacy we let's understand. Government को ज़्यादा अच्छे से. अग्रीड सर, मतलब तालिबान व्हेन ये हुआ था जब तालिबान ने अटैक कर दिया था और कंदाहार भी उसके चपेट में आ गया फाइनली, मतलब क्वेटा एंड ऑल दैट, ये सब लोग आ गए एंड इट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग, क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर किसी पीस समिट में अफगानिस्तान भी पार्ट था। तो इट इज सच अ आयरनिकल थिंग कि तुम पीस समिट का पार्ट कैसे बन रहे हो? यू आर द परपेट्रेटर्स। आप पीस के सबसे ज्यादा आप ही कलेश कर रहे हो सब जगह एंड आप पीस समिट के पार्ट हो। तो आई एम ग्लैड कि वो ब्रिक्स के पार्ट नहीं है। तो यस, दिस इज आई थिंक वेरी डिप्लोमेटिक स्टेप। आई डोंट थिंक इट मीन्स एनीथिंग, बट वो शायद पाकिस्तान को कंट्रोल में रखने के लिए वो बाय एनी मीन्स दे आर ट्राइंग टू बी इन टच विद अफगानिस्तान। आई डोंट थिंक एनी अदर रीजन। दुश्मन का दुश्मन को भी हम कभी दोस्त बनाना पड़ता है. आई थिंक वो पॉलिसी है यहाँ पे. इन दिस बुक देयर इज अ डिप्लोमेटिक रीजन कि 2008 के बाद इन्होंने क्यों नहीं अटैक होने दिया, हमने वापस अटैक क्यों नहीं किया। और उसका ये रीजन है कि हम पाकिस्तान को एक मौका दे रहे थे, इस बुक में लिखा है। आई वाज शॉक्ड कि ये कैसा मौका दे रहे हो आप। एंड देन दे टोल्ड कि हम इकोनॉमिकली, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ रहा था 2008 में, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस भी था, तो दैट्स व्हाई वी डिड नॉट अटैक। तो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हमने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया, मतलब दैट डजंट मेक एनी सेंस, बट ठीक है। वो देखा जाए तो बिकॉज मनमोहन सिंह थे उस समय अपने प्राइम मिनिस्टर, और वो हर चीज को डेफिनेटली एक इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखते होंगे, और वही रहा, क्योंकि क्या है कि वॉर तो किसी के लिए भी सही नहीं होता है, तो वॉर करेंगे तो उसमें रिसोर्सेज जाएंगे, तो उन्होंने उस हिसाब से देखा. बट सर्टेनली थी, मान लो ये अभी जैसी गवर्नमेंट होती तो ये वो कौन सा सिंदूर करते उस समय भी करते ही करते, बट उस समय नहीं होता तो इतना बड़ा अटैक होने के बाद. Agreed. Again, very true, Amiji. In under the garb of diplomacy, that is heights of tolerance. We were very tolerant. We still are very tolerant. But हाँ, उस टाइम तो ज्यादा ही tolerant है. We've always been tolerant. In fact, recently I've been coming across such things that I've been watching. One is this movie called Governor. I'm sure, Palak, you are aware of it. The other one that I told you about was Safed Sagar. And many such things that we come across. We see that India has always been forgiving. India has always been tolerating. Vasudhaiva Kutumbakam ke naam pe hum log सब कुछ जाने देते हैं. And then we say diplomacy, then we say, oh, we are a poor nation, oh, we are this, oh, we have so much of population. But yeah, ठीक है. Maybe that is our strength. I found that our strength is our intellect. मतलब ऐसा लगता है कि हम जब despite all the, especially when I'm reading all these books, and अभी इससे संजय सर से भी बात हुई कि sanctions लगने के बावजूद they were able to build a fuel for nuclear submarine, for the submarine 2 साल में. It's an achieve humongous task in itself. बहुत ही बड़ी बात है करना achieve. So I think वो
बाय लॉज निकाले थे ना, हम की सैंक्शंस भी चल रहे हैं और हम फिर भी हमारा काम कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स आवर स्ट्रेंथ एंड वेरी प्राउड। मार्स मिशन हुआ या मंगलयान, चंद्रयान, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, अमेजिंग। All right, so we can take another last selfie so that I will have 2 grids to post. सब सोशल मीडिया के लिए, बट इट्स फन। भाई जी, अमी जी, आई वुड रियली लाइक टू सी, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। ओके, so ready everyone? Bye. Thank you. All right. So tomorrow we have session by Sher sir on Art of Habits. और आई थिंक फ्रॉम सितंबर हम आर्ट ऑफ हैबिट्स के 4 चैप्टर्स लेंगे, सो दैट विल बी एबल टू फिनिश इट, बिकॉज हम ये बुक ऑलरेडी एक बार कवर कर चुके हैं, so that's why, and then we'll start with another book, maybe Art of Focus and Art of Resilience. So let's see. So thank you so much everyone for joining, and with that we come to the end of the session.